یہ ایک فرض علم ہے اور اس کو سیکھنا ہر بالغ مالدار مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ حج اور عمرہ کا طریقہ سیکھے۔ آج وہ ایک سکھایا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم حج کی ٹائپس پر گفتگو کر لیتے ہیں تاکہ ایزیلی آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم کون سا حج کرتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ عمومی طور پر جو ہم آفاق کہتے ہیں آؤٹ آف میقات سے جو باہر سے آنے والے افراد ہوتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، یعنی ایک عمرہ بھی کرتے ہیں اور عمرہ کے ساتھ حج کرتے ہیں، اور عمرہ اور حج اکٹھے کرنے کا نام حج تمتع کہلاتا ہے۔ تو یہ حج تمتع ہم کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو حرم شریف کے اندر رہتے ہیں وہ حج افراد کرتے ہیں، اور حج قران تو بہت مشکل حج ہے، اکثر افراد یہ حج قران نہیں کرتے، بلکہ دنیا میں شاید چند افراد ہوں گے حج قران کرنے والے، زیادہ تر حج تمتع کرتے ہیں۔ اور حج تمتع کے اندر عمرہ کا احرام ہم باندھتے ہیں آؤٹ آف میقات، اور اس کے بعد عمرہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم حج کے ایام کا انتظار کرتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ تک ہم اپنے نارمل لباس کے اندر زیارات اور دیگر طواف وغیرہ کرتے رہتے ہیں، اور 8 ذی الحجہ کو ہم دوبارہ حج کا احرام اپنے ہوٹل سے باندھ کر حج کرتے ہیں۔ یہ حج التمتع کہلاتا ہے۔ اب 8 سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، 8، 9، 10، 11، 12 اور 13، یہ 6 دن تقریباً 6 دن بنتے ہیں۔ ان دنوں میں ہم نے پورا حج ادا کرنا ہے۔ 8 سے شروع ہو کر 13 تک، 8 سے شروع ہو کر 13 تک افعال حج ہم نے ادا کرنے۔ وہ کیسے کرنے ہیں، ان میں امپورٹنٹ چیزیں کون کون سی ہیں، وہ میں نے مختصر طریقے سے آپ کو ڈے بائی ڈے بتاؤں گا۔ اتنا مختصر کروں گا تاکہ آپ کو یہ سب سمجھ آ گا۔ سب سے پہلے 8 کو ہم نے احرام باندھنا ہے، احرام حج۔ احرام حج جو ہوتا ہے ہم ہوٹل سے باندھیں گے، حرم شریف میں ہیں تو حرم شریف کے اندر سے ہی احرام حج کا باندھا جاتا ہے۔ پھر ہم جب 8 کو احرام باندھ لیں گے اور پھر سورج جب نکل جائے گا تو ہم مینا کی طرف اپنا سفر شروع کر دیں گے۔ سورج نکلنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن سورج نکلنے سے اجالا ہو جائے گا تو پیدل سفر ہوتا ہے، تو پیدل مینا شریف کی طرف ہم جائیں گے۔ 8 ذی الحجہ کو مینا شریف میں جائیں گے تو مینا شریف کے اندر قیام جو کرنا ہے ہم نے کب سے کب تک رہنا ہے۔ 8 کی ظہر ہم نے مینا میں پڑھنی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ قیام کرنا سنت ہے، اور 5 نمازیں ہم نے ادھر پڑھنی ہے مینا شریف میں۔ جب ہم نے فجر پڑھ لینی ہے اور پھر انتظار کرنا ہے سورج جب نکل آئے، اس کے بعد ہم نے سفر شروع کرنا ہے 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ شریف کا سفر شروع کرنا ہے۔ وہاں پہ ٹھہرنا، وقف کرنا، یعنی کہ ٹھہرنا، وقوف کرنا، یہ حج کا رکن اعظم ہے، اس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں ہے۔ لہذا عرفہ کی طرف ہم نے جانا ہے 9 ذی الحجہ کو، ہم وہاں ظہر سے پہلے ہی پہنچ جائیں گے۔ ظہر سے وقوف عرفہ کا وقت شروع ہوتا ہے، لہذا ظہر سے پہلے 9 ذی الحجہ کو پہلے جا کے غسل وغیرہ کریں گے، طہارت وغیرہ کرنے کے بعد ظہر سے ہم وہاں پر نماز ظہر پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم وقوف شروع ہو جائے گا۔ وقوف کا طریقہ اصل یہ ہے کہ کھڑے ہوں اور سر پہ اور یہ کوئی بھی کپڑا نہ ہو، اور دھوپ کے اندر کھڑے ہو کر اپنے رب کریم سے دعائیں کرنا، اور اس کے علاوہ رب کریم سے مانگنا، یہ وقوف عرفہ ہے۔ اصل میں وہاں پہ ٹھہرنے کا نام وقوف عرفہ ہوتا ہے۔ اور جب آپ وقوف عرفہ آپ کا کب سے کب تک ہے، ظہر کی نماز سے سٹارٹ ہوا اور یہ اگلے دن کی فجر تک اس کا وقت ہے، لیکن آپ نے جو عرفہ شریف میں ٹھہرنا وہ مغرب تک ٹھہرنا، مغرب تک ٹھہرنا کیونکہ واجب ہے، اس لیے اس واجب کو پورا کرنے کے لیے ہم مغرب تک ٹھہریں گے۔ مغرب کی نماز ہو جائے گی، وہاں پر اذان مغرب جب سنیں گے تو عرفہ شریف سے نکل کر مزدلفہ کا سفر شروع کر لیتے ہیں۔ تو کیونکہ مغرب ہم ادھر نہیں پڑھیں گے، عرفہ شریف میں مغرب نہیں پڑھیں گے، مغرب ہم نے مزدلفہ میں پڑھنی۔ آج 9 ذی الحجہ ہے، سورہ غروب ہو چکا، لہذا ایسی صورت کے اندر آپ فوراً سورہ غروب ہونے کے بعد عرفہ سے نکلنے کی کوشش کریں۔ تو عرفہ سے نکل کر کہاں جانا ہے؟ اب آپ نے جانا ہے مزدلفہ کے اندر۔ مزدلفہ شریف کے رستے میں بھی آپ نے نماز مغرب نہیں پڑھنی، منع ہے، حدیث میں منع کر دیا گیا۔ کب پڑھنی ہے؟ عشاء کے وقت میں جا کر آپ نے مزدلفہ کے مقام پہ جا کے پڑھنی، عشاء اور مغرب دونوں کٹھی پڑھنی ہے۔ تو مزدلفہ کا قیام بھی شروع ہو گیا۔ شروع کا ٹائم تو فجر کے بعد ہے، لیکن نائٹ گزارنا کیونکہ مزدلفہ میں سنت ہے، لہذا آپ مزدلفہ میں پہنچ گئے۔ سب سے پہلے اذان مغرب ہوگی، پھر
जमात मगरिब अदा की जाएगी तकबीर पढ़कर, इकामत पढ़कर, फिर उसके बाद इशा की इकामत होगी, फिर जमात इशा होगी और उसके बाद हम मगरिब के सुनन और नवाफिल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इशा के सुनन और नवाफिल वितर पढ़ेंगे। ये तरीका है वहां पे दोनों नमाजों को इकट्ठा पढ़ने का। मुजदलिफा में सारी रात गुजारना सुन्नत है, लिहाजा हम सारी रात मुजदलिफा के अंदर तस्बीहात, अपने रब्बे करीम से दुआएं और इल्तिजाएं करते रहेंगे। और उसके बाद जब हम मुजदलिफा शरीफ के अंदर फजर का वक्त होगा तो वकूफ मुजदलिफा अब स्टार्ट हुआ है। बहुत से काफिले वहां पर फजर से पहले ही रुखसत हो जाते हैं, वो समझते हैं रात को हमने वकूफ मुजदलिफा कर लिया, हालांकि वक्त वकूफ मुजदलिफा फजर के बाद स्टार्ट होता है, फजर से स्टार्ट होता है। लिहाजा फजर पढ़े वहां पर, फजर पढ़ के अगरचे थोड़ी देर ही, बल्कि फजर आपने अगर मुजदलिफा में पढ़ ली तो वकूफ मुजदलिफा पाया गया, अब फौरन फिर दोबारा मीना की तरफ निकल जाए। और मीना शरीफ से हमने सफर शुरू किया था, 8 जिलहिज्जा को हमने 5 नमाजें उधर पढ़ी थी और अब आपने 10 जिलहिज्जा हो गई, 10 जिलहिज्जा को आप मीना के में अंदर दोबारा आ गए तो सूरज निकल चुका होगा। तो उस वक्त अपने सामान वगैरह रखने के बाद आपने आज 10 जिलहिज्जा को 3 काम करने हैं। पहला काम, आपने बड़े शैतान को रमी करनी है, स्टोनिंग करनी है। 10 जिलहिज्जा को आपने फौरन जाना है और स्टोन्स आपने मुजदलिफा से कलेक्ट कर लिए होंगे और वहां आपने बड़े शैतान को सिर्फ रमी करनी, बड़े शैतान को 7 स्टोन्स आपने मारने। सूरज निकलने के बाद आप रमी कर सकते हैं और उसके बाद क्योंकि 10 जिलहिज्जा को सूरज निकलने के बाद इसका वक्त शुरू हो गया रमी का, तो आप जाके उसे रमी कर दें। उसके बाद आप इंतजार करेंगे कि आपकी कुर्बानी जो है हज तमत्तो के अंदर शुक्राने में जो कुर्बानी दी जाती है वो वाजिब है। वो कुर्बानी जिसको आपने जमा करवाई हुई है आप उसे फोन करके पूछेंगे मेरी कुर्बानी जबा कर दो, तो रमी के बाद वो आपकी कुर्बानी जबा कर देगा। आपकी कुर्बानी जो है जब जबा हो गई है उसके बाद आप इहराम खोल दें। इहराम खोलने के से पहले आपने हल्क या तकसीर जो कुछ शर्त है उससे इहराम खोलना होता है। लिहाजा आप अच्छा सा जो बार्बर है उसे ढूंढें और आप अपना हल्क करवा के इहराम की बोनियों से निकल आए, इहराम खोल दें। इसी तरह औरतें जो हैं वो आपस में एक दूसरे के बाल काट सकती हैं क्योंकि अब वक्त उनका आ चुका इहराम से निकलने का, तो एक दूसरे की तकसीर भी कर सकती हैं और हम भी एक दूसरे के बाल काट सकते हैं, लेकिन हमें इतना तजुर्बा नहीं होता, हम बाल काटने के साथ कुछ और ना काट दें, इसलिए बेहतर है कि अच्छे बार्बर से अपना बोल्ड करवाएं। जब हलक कर लिया, इहराम की बंदियों से निकल गए, तो आज आपके तीनों काम हो गए। आपने क्या करवाने थे, आपने रमी करनी थी, कुर्बानी करनी थी और साथ हलक या तकसीर से इहराम से निकलना था, वो आप निकल गए। गुस्ल करें और अब तवाफुज़ ज़ियारा के लिए 10 जिलहिज्जा को चल पड़े। तवाफुज़ ज़ियारा का वक्त 10 से शुरू होता है और 11-12 के मगरिब के गुरूब होने तक तवाफुज़ ज़ियारा का वक्त है, लेकिन 10 को ही कर लें तो ज्यादा अफजल है। तो आप 10 को आप मीना शरीफ छोड़ें और मीना शरीफ छोड़कर आप चले जाएं। आप गालिबन असर और मगरिब के दरमियान मस्जिद हरम में पहुंचेंगे पैदल चलते हुए और वहां पर आप तवाफुज़ ज़ियारा करेंगे। हजर अस्वद से स्टार्ट करेंगे 7 चक्कर और 7 चक्कर जब आपके पूरे हो जाएंगे आपका तवाफुज़ ज़ियारा हो गया। उसके बाद वाजिबुत तवाफ 2 नफल पढ़ेंगे। उसके बाद हज का एक और वाजिब भी आप पर बाकी है, वो है साई। अगर आपने 8 जिलहिज्जा को सई एक तवाफ के साथ नहीं की थी, नफली तवाफ के साथ, तो अब आप पर सई वो वाजिब है। आप सई दोबारा हज की कीजिए और सई बिटवीन सफ़ा मरवा, जैसे मैंने आपको उम्रे में बताया, उम्रे के तरीके में कि सफ़ा से स्टार्ट करेंगे और 7 चक्कर मरवा के दरमियान हम लगाएंगे तो सही हो जाएगी। तो जब आपने वाजिब हज का सही भी अदा कर ली, तवाफुज़ ज़ियारा भी अदा कर लिया, अब आपने दोबारा मीना में जाना है। बाद लोग होटलों में चले जाते हैं रेस्ट करने के लिए, नहीं, अभी रेस्ट नहीं है क्योंकि अभी अफ़आल हज आपने 13 तक अदा करने हैं। अब आपने दोबारा मीना शरीफ में जाना है, आपने पूरी रात गुजारनी है। रात गुजारने के बाद जब दिन चढ़ेगा, दिन चढ़ के फजर उधर पढ़नी है, जोहर उधर पढ़नी, जोहर के बाद आज रमी करनी है। 11 का दिन है आज, तीनों शैतानों को रमी करनी है। जोहर के बाद उसका वक्त स्टार्ट होगा, लिहाजा आपने तीनों शैतानों को बितरतीब नमाज पढ़ने से कबल या नमाज पढ़ने के बाद तीनों शैतानों को रमी करनी है। 7 स्टोन शैतानों को मारेंगे तरतीब के साथ। उसके बाद आपने रमी भी तीनों दिन की कर लें। मीना शरीफ आप छोड़ दें। एक वाजिब हज का रहता है, तवाफ़े वदा कहते हैं। 11 और 12 की 13 की रमी जो है, अगर आप मीना शरीफ में रहेंगे तो आप पर वाजिब है, लेकिन 11 और 12 की रमी वाजिब है जो जोहर के बाद जिनका वक्त स्टार्ट होता है, जो मैंने आपको बताया। तो हज वदा अब करना है क्योंकि आफाकी पर, आफाकी कहते हैं जो मिकात से बाहर से लोग आते हैं। मिकात
जद्दा मिकात के अंदर है, मिकात की हदूद हरम की हदूद के बाद हिल की हदूद है, हिल की हदूद के बाद मिकात की हदूद। हम सब आफाकी हैं, हम पर हज का एक और वाजिब रहता है, हज वदा, वो तवाफ़े अलवदा उसे कहते हैं। ये हज का एक वाजिब है, ये हम नॉर्मल कपड़ों में आकर 7 चक्कर लगाकर 2 नफल पढ़ते हैं, तवाफ़े अलवदा हो जाता है। ये जब हम मदीना शरीफ में जाने लगते हैं ना, उस वक्त सब लोग कर रहे होते हैं, लेकिन आप हज के फौरन बाद भी कर सकते हैं। जब भी आपको मौका मिले, आप मदीना शरीफ जाने से पहले या अपने मुल्क पाकिस्तान या इंग्लैंड या किसी भी जगह जाने से पहले वो तवाफ़ अलवदा आपने करना होता है। उसके बाद मदीना शरीफ की हाज़री है, और इस हाज़री के अंदर ही कबूलियत का दारोमदार है, और ये बड़ी बाअदब हाज़री अल्लाह ताला हमें नसीब करे। जब भी आप दुआ करें कि हमें हाज़री मदीना का शर्फ हासिल हो, तो हमेशा दुआ करें कि बाअदब हाज़री हो, हमारी बेअदबी के साथ ना हो, क्योंकि ये आमाल, ये हज की मशक्क़तें, ये सब कुछ मुंह पर भी मार दिया जाएगा, क्योंकि वो जगह जो है वो अर्श से भी नाजुक तर जगह है। जुनेदो बायजीद जैसे बुजुर्ग भी वहाँ नफस गुम करदा मी आयज, जुनेदो बायजीद रीजा, कि वहाँ जुनेदो बायजीद जैसे बुजुर्ग भी अपने नफस, अपने सांस को गुम करके आते हैं कि कहीं बेअदबी ना हो जाए, वो इतनी नाजुक जगह है। और अभी आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो मुख्तसर तरीके से हज, वो भी हज तमत्तो का जो मैंने आपको तरीका बताया है। और इसके अलावा एक और सवाल भी लोग करते हैं कि वहाँ पर जो हम कुर्बानी करते हैं वो ईद की कुर्बानी होती। नहीं, ईद की कुर्बानी वो नहीं है, मुसाफिर हैं हम वहाँ पर, मुसाफिर पर ईद की कुर्बानी वाजिब नहीं होती। और वहाँ पर जो कुर्बानी हम करते हैं वो हज तमत्तो के शुक्राने की कुर्बानी है, और वो वाजिब होती है। तो वो कुर्बानी हम वहाँ पे कर रहे होते हैं, वो ईद की कुर्बानी नहीं है। एक और बंदे ने बड़ा अच्छा सवाल किया, तो वो कहने लगा हम वहाँ पर ईद जो है क्यों नहीं पढ़ते, वहाँ पर हज के अफ़आल में आप मसरूफ़ होते हैं, तो आप पर ईद पढ़ना ज़रूरी नहीं है। और जो हाजी नहीं होते और दीगर इलाकों में, मुल्कों में होते हैं, उन पर ईद वाजिब है, लेकिन हाजी पर ईद का वजूब नहीं है। मुसाफिर होने की वजह से अपने अफ़आल हज में बिजी है, मसरूफ़ है, और लिहाजा उस पर ईद का वजूब नहीं है, तो इसलिए ईद वहाँ पर नहीं पढ़ी जाती। तो ये अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल हमें सारे मसाइल को याद करने और हक़ पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।